वो दिन आए, खुदा न करे वो दिन आए, अगर मुल्क फिर कभी बटा तो फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर ही बटेगा। इसलिए हर मुहिब वतन शहरी का ये कौमी फरीज़ा है कि वो मुल्क में नफ़रत को फैलने से रोके और नफ़रत की जगह प्यार और मोहब्बत का पैगाम आम करे। आम तौर से आज के माहौल में मज़हब की आड़ में नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जमीयत उलमा ये कोशिश करती है कि अपने स्टेज पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमाओं को मौका दे ताकि वो अपने मज़हब की उन तालीमात को लोगों के सामने पेश करें जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती हैं, जो इंसान को इंसान बनकर रहने का पैगाम देती हैं, जो इंसानियत का दर्स देती हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के हज़रात हमारे स्टेज की ज़ीनत बने। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेज हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहज़ीब का भरपूर नज़ारा पेश कर रहा है। आइए, वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, अब मैं तकारीर का सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ। इसलिए सबसे पहले जनाब पास्टर डॉक्टर सीपी भुजबल साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और इंसानियत के ताल्लुक़ से आपके धर्म ने, आपके मज़हब ने जो पैगाम दिया है, इस बेकरार मजमे को आप वो पैगाम सुनाएं और इन्हें ये बताएं कि हमारे मुल्क की किस्मत प्यार व मोहब्बत के साथ बंधी हुई है। प्यार व मोहब्बत ख़त्म होगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और 10 मिनट में आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें। Good evening, friends. I am very much overwhelmed and excited to see such a big crowd. And there is a secret of it, that we have unity and integrity of all our religion. And we praise and thank God that God has something great for us. As I see all our leaders here, dignitaries, I really congratulate you. I salute you because you are doing a great work in our country. Our country is a vast country. There is a unity in diversity. Even though we are from different creed, colors, cultures, religions, but we are one in God. We do believe in God. And in this new year, God has something great for us. So we are going to launch out. The Christian community is also with you. We are one, brothers, and we thank the Lord for giving us this opportunity this evening. You might be knowing that we are observing fast and prayer for 40 days. And you also do that. So every day we have prayer, fasting, and people come every morning and every evening. And God has some purpose for us. So I really congratulate the organizers of this big gathering, that there is something great for us. And in future, we are going to see great events as we come together, bind together, and we praise and thank God that He is still on the throne. He watches us, and in spite of calamities or hurdles or disappointments, He
gives us his peace. He says that I will give you my peace. Don't be disturbed. As you know, Honorable Mother Teresa, who has given her life for the country, and she was working for poorest poor, those who are on the street, those who are beggar, those who do not have shelter, but she provided that. And we know that what great work she has done, not only in Calcutta, but all over India and the world. So we must have that compassion in our hearts. Unless and until we don't have compassion, how can we move and work among the people? And friends, I will not take more of your time, but let me assure you that Christian community is with you all. Thank you very much. अब मैं दरख्वास्त करता हूँ ज्ञानी अमरजीत सिंह से, जिनका ताल्लुक़ गुरुद्वारा दरबार कैंप से है, कि आप तशरीफ़ लाएं और प्यार व मोहब्बत का वो पैगाम जो आप अपने सीनों में रखते हैं इस बेकरार मजमे के सामने पेश करें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित लोग, सम्मानित सज्जन और आए हुए सभी हजरात, जितने भी मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो जमात-ए-हिंद की तरफ से राष्ट्रीय एकता का प्रोग्राम बहुत ही बड़े स्तर पर रखा गया है, दिल को टच करने वाला प्रोग्राम है। समय मेरे लिए 10 मिनट बहुत है। 10 मिनट में ही वो जैसे कहते हैं समुंदर को एक कोजे में पाने वाली बात है। मेरे से कई गुना ज्ञान रखने वाले मेरे बुजुर्ग स्टेज पर सुशोभित हैं। मेरे से बोलते हुए अगर कोई भूल हो जाए उसको दिल से मत लगाना, ये मैं आपसे अरदास करता हूँ। और मैं अब शुरुआत करता हूँ। जैसे कि आपके ही मखारबिन से आपके कुरान शरीफ में से अल्फाज जो बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसके अर्थ हैं आप सभी से ही मैंने सीखे हैं कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा नेक और रहम दिल है। उसको गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर कहते हैं मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान का मतलब है बख्शिश करने वाला, रहमत करने वाला, कृपा करने वाला। और जब हम ये बात कहते हैं
कि शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा नेक और रहम दिल है। तो बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है, जो मसला लेकर के आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि जब हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, हर एक इस्लाम धर्म का मेरा भाई इस बात को बखूबी कहता है, तो अंदर नफरत कहाँ से आ जाएगी? अगर हम इसको सच्चे दिल से कहते हैं तो नफरत कहाँ से आ गई? जब अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नेक है, अगर वो नेक है हम उसको नेक मानते हैं और अपने आप को उसका कहलाने वाले, तो हम बुरे कैसे हो सकते हैं? पर ये केवल कहने के लिए नहीं होता, ये अंदर बसाने के लिए होता है। वो रहम दिल है। अगर हमारे अंदर कट्टरता है तो इसका मतलब हम खुदा से टूटे हुए हैं, हम उस रब से टूटे हुए हैं, हम उस परमात्मा से टूटे हुए हैं जो खुदा से जुड़ा हुआ है। वो सचमुच रहम दिल है। और मैं अब आपके सामने ऐसी मिसाल पेश करके समाप्ति की तरफ आ रहा हूं जो मेरे को बोला है। पहली बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करके जाना चाहता हूँ। बार बार हमारे सामने ये बात आती है कि इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पहले आप हम सबको ये समझ लेना होगा कि ये धर्म नहीं। मैं स्पष्ट करके जाना चाहता हूँ, धर्म की परिभाषा ये नहीं है, ये मजहब नहीं, ये पंथ हैं। क्या है पंथ? ये रास्ते हैं जो हमारे दिमाग की उपज है। इंसानियत की बात मेरे बड़े भाई बार बार कर रहे थे। खुदा के यहां से केवल इंसान आया है, किसी के ऊपर ये लेवल नहीं लगा कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। धर्म क्या है? अगर हमें कोई पूछता है धर्म क्या है, तो धर्म की परिभाषा सुन लें। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हरि मतलब खुदा, वाहिगुरु वो गॉड के धर्म हमारा है। इंसान को जब मां के गर्भ में उस परमात्मा ने रखा, तो उस समय ये इंसान बोलता है कि मेरे को बाहर निकालो, खुदा से रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उल्टा टका हुआ होता है। हमको आज कोई उल्टा टाँक देना, कितनी देर रह सकते हैं? उस टाइम ये खुदा के चरणों में फरियाद करता है, मालिक ए खुदा मेरे को बाहर लेके चल, मैं जाके तेरी बंदगी करूंगा, मैं जाके तेरा नाम जपूंगा। पर संसार में आके सब कुछ भूल गए। फर्ज हमारा था, धर्म हमारा था कि जो हमने खुदा से रिक्वेस्ट की थी उसको निभा लेते, संसार में आके उस खुदा के नाम से जुड़े रहते। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, यही सबसे उत्तम धर्म है, जिसे हम मानव धर्म भी कहते हैं। और मानव धर्म का फर्ज है कि हम खुदा के साथ में जुड़े रहें और नेक कर्म करें। ये धर्म है। धर्म की अगर परिभाषा मेरे जहनो दिमाग में जो है वो ये है कि खुदा के साथ में जुड़े रहना और नेक कर्म करना ही धर्म है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी मिसाल पेश करने जा रहा हूं कि जब गुरु नानक देव महाराज इस मिशन के लिए निकलते हैं, जो आज हमें महसूस हो रहा है राष्ट्रीय एकता। गुरु नानक को पढ़ा होगा मेरे बुजुर्गों ने, जब वो इस मिशन पर निकले जो खुदा का हुक्म था, तो उसमें उन्होंने अपना एक साथी बनाया जिसे कहते हैं इतिहास के अंदर भाई मर्दाना। और ये कौन था भाई मर्दाना? ये मिरासी है। चाहते तो बहुत सारे सिख भी थे जिन्हें अपने साथ में लेके चल सकते थे, पर उन्होंने इस राष्ट्रीय एकता की बात को समझते हुए कि आने वाले समय में एकता के बिना कुछ भी सफल होने वाला नहीं, एक मिरासी को अपने साथ में रखा और एक भाई बालाजी हिंदू मत से बिलोंग करते हैं उनको रखा। ये राष्ट्रीय एकता का पहला प्रतीक है। और जहां पे भी जाते थे
गुरु नानक को हिंदुओं ने भी पूछा, मुसलमान भाइयों ने भी पूछा कि आप कौन हैं? ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। इसका मतलब है कि मैं उस खुदा का बंदा हूं, बस, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं। आपको इस्लाम धर्म के अनुयायी ने ये बोला कि आप अगर इस्लाम को मानते हैं कोई फर्क नहीं है, खुदा के मानने वाले हैं, तो क्या आप नमाज अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगर जगन्नाथपुरी में आपको कहा गया कि आप आरती कर सकते हैं, कि बिल्कुल बेशक हम कर सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि ये तो वंदना है, ये तो खुदा के चरणों में सिजदा करने वाली बात है, तो इसमें ऐतराज क्या है? जब पूछा कि आपके साथ में ये जो दो लोग हैं ये कौन है, क्या आपके शागिर्द हैं? हम कई बार जो इंसान को जो बांटा है, 4 हिस्सों में बांट दिया, एक बड़ा, एक छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। जब गुरु साहब को पूछा कि ये कौन है, कि ये मेरा भाई है, ये मेरा कोई सेवादार नहीं, ये मेरा भाई है। आज हमारे दिलों में ये दिमाग में क्यों बात नहीं आती कि ये सब जो बैठे हुए हैं ये सब मेरे भाई हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, पहचानो कौन इसमें से अच्छा है और कौन बुरा है। सबको तो खुदा ने बनाया है। ये भगत कबीर जी कहते हैं, जो जुलाहा कम्युनिटी से आते हैं, कि सबको बनाने वाला खुदा है। अगर ये समझते हो कि सबको बनाने वाला खुदा है, तो कौन अच्छा है कौन मंदा है, इसकी पहचान कैसे होगी? उसके कर्मों से होगी। जो वो कर्म करता है उसके कर्म से उसकी पहचान होगी, वैसे कोई अच्छा नहीं और कोई बुरा नहीं। फिर राष्ट्रीय एकता की बात करते हुए, जब जैसे हरेक मत के गुरु उन्होंने एक पहचान बनाने के लिए एक ग्रंथ तैयार किए, इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ जैसे और भी मत हैं उनके भी ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, बाइबल है। ऐसे ही जब एक ग्रंथ की लोड समझी तो उस ग्रंथ में 5वें गुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज लाहौर में काल पड़ गया, तो वहाँ जब काल पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए तो उसमें ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, सबकी प्रॉपर उसी तरह से सेवा खिदमत हुई। और जब ग्रंथ तैयार हुआ तो केवल उसमें एक कोई सिख की बानी नहीं, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक को सूत्र में बनाते हुए पहनाते हुए जो ग्रंथ तैयार किया गया, कि गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि मैं सब में उस खुदा को देखता हूं। तो इस बात को ध्यान रखा गया कि 5वें रूप में जब धन गुरु अर्जन देव महाराज इस ग्रंथ को तैयार करने लगे तो उसमें भगत रविदास जी को भी बराबर का सम्मान दिया, जिसको कहते हैं कि जी ये तो जूते गांठने वाला है, लोग ठुकरा के चले जाते थे। ये तो जुलाहा है जी, ये तो धागे बनाता है, दुतई बनाता है, इसको ठुकरा के चले जाते थे। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र से आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे भगत हैं जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर बराबर दर्जा दिया। और जब हम सिजदा करते हैं ना उस गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को, तो उसमें केवल हम ये देख के नहीं करते कि इसमें गुरु नानक देव महाराज जी बैठे हैं। हम उसको सिजदा इसलिए करते हैं कि ये रब्बी कलाम है, और रब ने ये कलाम वो जो संत महापुरुष वो भगत हुए हैं उनके द्वारा हमें दिया है, और उस ज्ञान को हम नतमस्तक होते हैं। ये राष्ट्रीय एकता का दूसरा प्रतीक। आप गोल्डन टेम्पल के बारे में सभी जानते हैं। हरमंदिर साहब अमृतसर, उसकी जब नींव रखने लगे, क्या सिख मत के अंदर कोई विद्वान नहीं था, कोई परमात्मा को मानने वाला नहीं था? हमें कई बार ये भी कहा जाता है कि हिंदू का ही दूसरा रूप है। ओ भाई, मैं तो ये कहता हूं हम सब एक हैं।
कौन किसका रूप है किसका रूप नहीं, सब में देखो कि ये खुदा का रूप है, और खुदा का रूप जब होगा जब खुदा को मानेंगे। साईं मियां मीर लाहौर के रहने वाले, हरमंदिर साहब की नींव उनसे रखाई, राष्ट्रीय एकता का दूसरा प्रतीक ये है। और फिर उसके 4 दरवाजे बनाए गए, वो इसलिए कि हर किसी मजहब का इंसान वहां पे आकर के उस खुदा की इबादत कर सकता है, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं। केवल 2 मिनट आपसे लूँगा। इस सब को गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में कैसे दर्शाया है। 5वें गुरु कहते हैं, हमारे कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अलाए। पर कारण करण करीम कृपा धार रहीम, कोई नहावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निभाए। फिर कहते हैं कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सफेद, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई कहे पेस्त कोई सुरगुंदू। फिर अंत में कहा है, कहो नानक उस मालिक प्रभु परमात्मा के बारे में कि कहो नानक जिन हुक्म पछाता, जिसने प्रभु परमात्मा के हुक्म को समझ लिया, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता, वो खुदा के मर्म को पहचानता है। और जब हम खुदा की बात को समझने लग जाते हैं, खुदा की इबादत हमारे हृदय में बस जाती है, फिर ना को बैरी ना है बिगाना, सगल संग हमको बनवाई, ना को बैरी ना है बिगाना, सगल संग हमको बनवाई। फिर ना को मेरा दुश्मन रहा, ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराई। जब परमात्मा की बंदगी हृदय में बस जाती है, कोई किसी का दुश्मन नजर नहीं आता, सब अपने नजर आते हैं। सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरवा, ता मेल लियो मेरे राजन, राजन तो पाओ खुदा। फिर खुदा अपने साथ में मिला देता है। सो यहीं पे अपने विचारों को विश्राम देता हूँ, और समय से 2-4 मिनट में ऊपर ले गया हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमें बहुत अफसोस है कि हम अपने मेहमानों को पूरी तफसील के साथ सुन नहीं सकते। वक्त इसकी हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। वक्त पर पाबंदी करते हुए हमें इस प्रोग्राम को ख़त्म भी करना है। इसलिए मैं बिला किसी तमहीद के आज के इस इजलास के कन्वीनर जनाब कारी मोहम्मद इदरीस साहब, सदर जमीयत उलमा ज़िला पुणे से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और जितने मुख्तसर वक्त में आप अपना इस्तक़बालिया बयान पेश कर सकें, वो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा इस सिलसिले में कि आप मुख्तसर से मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात ख़त्म कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदुल्लाहि अल जमा। क़दर हो जिसकी कलम वालों की नज़रों में ज़रूर, ऐसी तहरीर के अंदाज़ कहाँ से लाऊं।
हज़रात उलमाए किराम, अइम्मा मसाजिद, ज़िम्मेदारान मदारिस इस्लामिया, मुतअद्दिद तहरीकों के ज़िम्मेदारान, हाज़रीन इजलास। शहर पूना हिंदुस्तान का एक मारूफ मकबूल शहर है। ये अगर एक तरफ तालीमी शहर है और यहाँ मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के सरचश्मे हैं, तो साथ ही मशीनों और कारखानों के भी शहर हैं। इस शहर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ से जो आवाज़ उठती है वो देखते ही देखते मुल्क गिर आवाज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज इस शहर के आज़म कैंपस ग्राउंड पर जमीयत उलमा हिंद पूना के ज़ेर तमाम कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस को आप हजरात देख रहे हैं। मेरा अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि मैं इस मौके पर चंद इस्तक़बालिया कलिमात पेश करूं। और वाक़या ये है कि इस्तक़बालिया कलिमात सिर्फ़ मेरे ही दिल की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये आवाज़ है शहर पूना की मुतअद्दिद तहरीकों की, मुख्तलिफ़ जमातों की, शहर पूना के दीनी मदारिस के उलमा और ज़िम्मेदारान की, मसाजिद के इम्मा हज़रात की। सबसे पहले मैं जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मद्दज़िल्लहु सदर जमीयत उलमा हिंद, जिनकी क़यादत में ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दज़िल्लहु अहद हाज़िर के मुमताज़ नामवर आलिम दीन और कायदाना सलाहियत के मालिक, सरगर्म दीनी और मिली रहनुमा हैं। उनकी ज़िंदगी जहद मुसलसल और सही पहम का इल्मी नमूना है। आज शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार व ख़यालात के अमीन और अपने वालिद मोहतरम शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे जानशीन और उनके मुजाहिदाना कारनामों के अक्स जमील हैं। ईमानी फ़रासत, सियासी बसीरत और ज़बरदस्त कौमी और मिली और समाजी शऊर आपका तुर्रा इम्तियाज़ है। बेदार मग़ज़ी, उलुल अज़्मी, फ़िक्री बालिदगी, अज़्म की पुख्तगी, इरादे की मजबूती, हालात से बाखबरी और कौम व मिल्लत की सही नब्बाजी ने उनकी शख्सियत को पुरएतमाद बना दिया। आप अपने असलाफ़ की राह पर पूरी बसीरत और गैर मामूली जुर्रत के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुश्वारियों रुकावटों के बावजूद मिल्लत की फ़लाह व बहबूद के लिए आपका सफ़र जारी है। दस्तूरी हुकूक़ की बाजियाबी हो या फ़िरका वाराना फ़सादात की रोकथाम, मज़लूमों की इमदाद हो या यकसा सिविल कोड की मुखालफत, औक़ाफ़ की निगहबानी हो या इस्लाह माशरा, आप अपनी सदा बुलंद करते रहते हैं। हज़रत मौलाना की रविश जज्बाती नहीं, बल्कि वो मसाइल के हल की कोशिशों में मुस्बित तर्ज़ अमल और फ़िक्री एतदाल से काम लेते हैं। आप मुफ़क्किर, माहिर तालीम और दानिश्वर भी हैं। आप अदीमुल फ़ुर्सती व पीराना साली के बावजूद मुल्क व मिल्लत के मसाइल को हल करने की कोशिशों में शब व रोज़ सरगर्म अमल रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। इस अज़ीमुश्शान इजलास की मसनद सदारत पर जल्वा अफरोज़ हज़रत मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र का हम बसमीम क़ल्ब इस्तक़बाल करते हैं। मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी मद्दहुज़्ज़िल्लहुल आलिया अपने पेराना साली के बावजूद तंजीमी सरगर्मियों में शब व रोज़ मसरूफ़ रहते हैं। आपके दिल में मिल्लत का ऐसा दर्द है जिसने आपको ऐसा बेचैन कर रखा है। कई ऐसी बीमारियों के बावजूद जो महलिक हैं, जिन बीमारियों में मुस्तकिल आराम की ज़रूरत होती है, आप मुसलसल अस्फ़ार करते रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए, आपकी उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए। इसी तरह हमारे दरमियान मेहमान मुकर्रम एक अज़ीम शख्सियत मौजूद है, जिन्हें हम और आप खादिमुल कुरान के नाम से पहचानते हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब दामत बरकातुहुम हैं। आप इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ के बानी हैं। अक्कल कुआ एक मदरसा ही नहीं, बल्कि एक तहरीक है जो गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मुल्क की पहचान बन चुका है। आप फ़िक्री व तहरीकी शख्सियत हैं। आप मुल्क में बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने फ़ोन पर हमारी दावत कबूल फरमाई, आप तशरीफ़ लाए और इस कॉन्फ्रेंस को रौनक बख्शी। हम आपको सलाम करते हैं। इसी तरह जनाब गुलजार अहमद आज़मी साहब लीगल सेल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र, आप जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर की रूह हैं। आप अपने ज़ौफ़ और अलालत तबा के बावजूद उम्मत के उन अफराद का गम अपने दिल में समोए हुए हैं कि हमें वो वक्त याद है कि पूना ही में कुछ नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। बजाय इसके कि उनके अहले खाना की दिलजोई की जाती, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने उनसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। ऐसे नाजुक हालात में सदर मोहतरम मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के हुक्म पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने उनकी दिलजोई, उनका साथ देने का आज़्म मुसम्मम किया और इस काम की कानूनी बागडोर जनाब गुलजार अहमद आज़मी साहब ने संभाली। और उसका नतीजा आपके सामने है कि जिन लोगों को फांसी तक की सज़ा हो चुकी थी वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। जनाब गुलजार अहमद आज़मी साहब आज हमारे दरमियान इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए
हम जमीयत उलमा ज़िला पूना और अहलियान पूना उनके बहुत मशकूर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और उनकी उम्र दराज फरमाए। एक और शख्सियत स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं, वो हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, जो मुल्क की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, जिन्होंने मुल्क की एकता अखंडता हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने में एक अहम किरदार अदा किया है। हम पुणे वालों की खुशकिस्मती है